morning. Today our topic is transfer of heat for class 7. Students of class 7. Class 7 topic transfer of heat. हीट के बारे में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. We have studied before this, and today the topic is transfer of heat. Heat actually can flow with a form of energy, and infrared light is responsible for the production of heat. Heat is transferred from any hotter object to a colder object. एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो होता है नेचुरली. So many experiments are available in our daily life. हमारे दैनिक जीवन में ऐसे ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं. But we have to study mainly how are the processes of transfer of heat. एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हीट का ट्रांसफर हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है. ये कॉमन बात. लेकिन हीट का ट्रांसफर के लिए कितने प्रोसेस हैं, कितनी विधियां हैं नेचुरली. तो हीट का ट्रांसफर की 3 विधियां हैं. कंडक्शन एक, कन्वेक्शन 2 और तीसरा रेडिएशन. 3 हीट के ट्रांसफर का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट if they are come closer to each other. वे एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो. यहाँ पर हीट के ट्रांसफर की 3 विधियां हैं. 3 मेथड्स, 3 processes are involved. First, conduction. Second, convection, and तीसरा radiation. 3 methods or 3 processes are for the transfer of heat from one object to another object or from one matter to another matter. Now we study separately what is conduction, what is convection, and what is radiation. All these 3 methods
all these three processes are taking part around our daily lives. हमारे दैनिक जीवन में ये सारी घटनाएं, तीनों प्रोसेसेस पे आधारित सारी घटनाएं घट रही हैं। हम सेल्फ स्टडी करें और अपने आसपास के वातावरण में साइंटिफिक जो फिनोमेना है उस पर ध्यान दें। हमको पता चलेगा कि हम साइंस के आसपास चल रहे हैं, घर पे भी, आसपास भी। यहाँ पर टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। Three processes, conduction. Let us start conduction. Conduction that process I am telling about conduction, that process in which heat is transferred from one matter to another matter or from one object to another object without transferring the matter particles, it is called conduction. Conduction means heat का ट्रांसफर हो। Heat का ट्रांसफर means this is an object, this is an object, and heat is given to this end of this object. Represent me. This is a solid object. This is made up of iron. Yes, this is a rod of iron. And this is heated. ये गर्म किया जा रहा है, यहाँ हीट किया जा रहा है। We feel that heat is transferred from this place to this place, 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 and finally the heat is reached to this place. But the molecules of this end are not reached to this place. Again, repeat this method, that this is a rod of iron, it is a solid, and we have to study the transfer of heat from one part of this object to another part of this object. Then we will give some heat to one end of this object. One end. Okay. We will feel that this heat transferred from this part to this part, from this part to this part, from this part to this part, and finally the heat is reached to end part of this iron object. This is an iron object. This is not a marker. Yes. In this observation, we feel that heat is transferred from one end to other end of
this iron piece, but molecules of this end of this iron rod are not reached to this end of this rod. Yet it is transferred from one end to other end of this object. This process of transferring of heat from one part to other part of an object, or from one object to other object, or from one matter to other matter, is called conduction. This is conduction. हीट का ट्रांसफर हो, लेकिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं हो, विदाउट ट्रांसफरिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम वन मैटर टू अदर मैटर. दिस इज कंडक्शन. Okay. We may understand this as an example. This is an iron piece. This is an iron piece. And iron may understand explanation. कैसे पहुंचता है हीट, ये प्रश्न. एक ऑब्जेक्ट के एक एंड पे हीट दिया जा रहा है. It is given to one end of this iron rod, but at one end, then how this heat is transferred to this, comes to this. This is my question. वहाँ पर आयरन के इस पिंड को हम गर्म कर रहे हैं. ये हीट धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड, यहाँ का मॉलिक्यूल्स, यहाँ का पार्टिकल्स जिससे आयरन रॉड बना है, आयरन रॉड इज मेड अप ऑफ small particles, and those particles are called the molecules of particles, or molecules or particles or atoms. Elements are made up of atoms, and compounds are made up of molecules. Atoms and molecules are called the particles of matter. तो यहाँ पर आयरन बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स से. आयरन पीस, एंड हीट का नेचर है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, समझ लो, if an object is heated, then the molecular kinetic energy of the object gets increased, बढ़ जाता है. molecular kinetic energy, molecular kinetic energy means
ये मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। आयरन इस नहीं, सभी वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। एंड ए सॉलिड हैज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इसके पास मौजूद है। ये वाइब्रेट करता है, इसका मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन, ये एक ही जगह पे आगे पीछे, एक ही जगह आगे पीछे वाइब्रेट करता है। मोशन है पार्टिकल्स में, पहले से ही मौजूद है मोशन वाइब्रेशन का। सभी सॉलिड में भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, दिखाई दे या ना दे। ये कौन से दिखाई नहीं देता है? माइक्रोस्कोप से। जब हीट हम देते हैं तब when heat is given to one end of the part, iron piece, one end of the iron piece, then the molecular kinetic energy of this end gets increased and they start vibrating rapidly, more rapidly, more rapidly. If more heat and more heat is given, then the rate of vibration will be increased gradually. Means vibration means this is, let us consider the particle is here at point A. The particle यहाँ है. This particle is considered as here at point O. This particle is vibrating continuously from this point to this point to this point to this point to this point. This point is called mean position. Conduction. To understand conduction, we will have to know that each object is made up of very, very small particles, and those particles are called atoms or molecules. All matters are made up of atoms or molecules. To understand conduction, those particles from which a matter is object, or those particles from which an object is made are in motion. सभी मोशन में है, चाहे सॉलिड रहे, चाहे गैस रहे, चाहे लिक्विड रहे, सभी बना है पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। वे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं या एटम्स कहलाते हैं। तो सॉलिड भी बना है एटम्स से या मॉलिक्यूल्स से। एंड दीज मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन ए सॉलिड are vibrating, have been vibrating already.
Vibrating means around a mean position. This is extreme position. This is extreme position. यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से रिटर्न यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से रिटर्न। ये वाइब्रेशन। Heat is given, then particles start vibrating. Vibrating. During vibration, one particle transfers its heat to another particles. During collision, ये वाइब्रेशन के क्रम में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है। टकराने के क्रम में हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू एक कोल्डर ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल से। तो ये ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल के माध्यम से दूसरा पार्टिकल के पास। हीट का ट्रांसफर होने से यहाँ का वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। वाइब्रेशन ये आगे वाले पार्टिकल का भी वाइब्रेशन बढ़ जाता है और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये अंतिम किनारे तक हीट पहुंच जाता है। लेकिन पार्टिकल्स जो पहले यहाँ वाइब्रेट कर रहा था वो आज भी यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है। ये पार्टिकल यहाँ तक नहीं पहुंचता है, जबकि हीट का ट्रांसफर यहाँ तक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ध्यान रहे एक बात कि कंडक्शन को समझने के लिए एक मैटर से दूसरे मैटर में हीट का तो ट्रांसफर होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होगा। उस घटना को, उस प्रोसेस को कंडक्शन कहा गया है। एक मिनट। कंडक्शन सॉलिड के माध्यम से हो सकता है, गैस और लिक्विड के बारे में आप बताते हैं। दिस इज कंडक्शन। चाय जो बनाते हैं तो हम मेटल का यूज करते हैं। कंडक्शन मीन्स प्लास्टिक। दिस इज सॉलिड, दिस इज प्लास्टिक and we start to heat this end of this plastic. इस प्लास्टिक के इस end को मैं गर्म कर रहा हूँ। पहले था आयरन रॉड, ये पहले था आयरन रॉड, नहीं अब वो खत्म हो गया प्लास्टिक। अब एक दिस इज सॉलिड, attention, that was also solid, an iron rod. In the case of iron, आयरन के रॉड के केस में क्या हुआ था कि एक इंड को गर्म किए तो दूसरे इंड तक हीट चला गया। ऐसे समझिए आयरन रॉड में इसके पहले जो बातचीत हुई, लेकिन नहीं, वो खत्म हो गया। अब आ गया प्लास्टिक। प्लास्टिक रॉड है, देख लीजिए, मार्कर है। अब इसके ये दिस इज ऑल्सो सॉलिड, सॉलिड ये भी है, सॉलिड वो भी था। इसके एक इंड को यदि हम गर्म करते हैं तब क्या होगा? ये भी तो सॉलिड है। ये बातें भी मार्केट मेरे निगाह में, आपके निगाह में जो हो, तो मैं तो जैसा देखा हूँ ये प्लास्टिक है, मैं जानता हूँ इस इंड को यदि गर्म किया जाएगा तो बेचारा ये लहकने लगेगा, ये जलने लगेगा, धुआं फैला जाएगा। एक इंड को एक इंड से दूसरे इंड तक हीट नहीं जाएगा, लहकते 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 लहकते।
जलाते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जलाते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये घटना लकड़ी में भी घटता है, रबर में भी, कागज में भी, सब सॉलिड है, ये सब भी सॉलिड है। तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उदाहरण देता हूँ, चाय जो बनाते हैं, चाय केतली में, हर घर में केतली, चाय केतली, उसका हत्था जो होता है, हत्था, चाय केतली तो हर घर में प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का होता है। तो लकड़ी वाला जमाना चल गया, जमाना ढेर दिन हो गया, अब आ गया प्लास्टिक का जमाना। तो प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? तो हीट के ट्रांसफर के मामले में पदार्थ को बांटा गया है, कैसा कैसा पदार्थ हीट का कंडक्शन के माध्यम से, हीट का ट्रांसफर, कंडक्शन एक टॉपिक, ओनली वन टॉपिक, कंडक्शन। सॉलिड भी है तो कैसा पदार्थ होना चाहिए जो कंडक्ट कर सके, कि हीट का ट्रांसफर कर दे, लेकिन एक इंड का मॉलिक्यूल का ट्रांसफर दूसरे इंड तक ना जाए, विदाउट ट्रांसफरिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड, वन मैटर टू अदर मैटर। कौन कैसा कैसा सॉलिड, उस पर भी विचार करना जरूरी है। तो रबर को एक इंड को गर्म करेंगे तो जलना प्रारंभ कर देगा, प्लास्टिक के एक इंड को गर्म कर देंगे इतना बड़ा टुकड़ा को तो वो जलना प्रारंभ करेगा। दुनिया भले फैलाती है स्मोक, पोल्यूशन। तो ये सारी बीमारियां आती हैं जिसके कारण ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट भी कंडक्शन का काम नहीं कर सकता है, यानी हीट का ट्रांसफर एक इंड से दूसरे इंड तक नहीं जा सकता है कंडक्शन के माध्यम से। अभी दो माध्यम, कंडक्शन और रेडिएशन, नहीं मैं कंडक्शन पर चर्चा कर रहा हूँ, ओनली कंडक्शन। ये सभी पदार्थ हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के माध्यम से नहीं करते हैं, रख लीजिए। सॉलिड है लेकिन ये कंडक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं। प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी आप किताब पढ़िएगा, NCERT चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट, यस। इसीलिए घर में जो चाय का केतली या प्रेशर कुकर नहीं रखते हैं घर में, अपने घर को देखिए, प्रेशर कुकर में रहता है रबर का, प्लास्टिक का बनल रहता है हत्था, हैंडल बाहर से। Plastic is bad conductor of heat, and so plastic is used to make the handle of tea kettle or a pressure cooker. ये सारी गड़बड़ी है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका उठता है कि why the handle of a tea kettle is made up of plastic or wood?
देंगे। यहाँ पर और ट्रांसफरिंग हीट का मतलब है कि यहाँ पर कंडक्शन पे हम यदि विचार करते हैं यहाँ पे तो होता क्या है कि एक एंड को हीट देंगे तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ जाएगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा तेजी से। सीधी बात है। If heat is given to one end at a, let us consider this end. कोई इंड को गर्म करे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक इंड को गर्म करे तो जिस इंड को हम गर्म करेंगे वहाँ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। सीधी तो बात है, ऐसे ऐसे करने लगेगा तेजी से, बड़ी तेजी। जितना गर्म करेंगे उतना तेजी से तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा, टकरा जाएगा। आदमी तो रोज टकरा मर जाता है, यहाँ का नहीं टकराएगा। जब टकराएगा तो अपना हीट दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये हॉटर है, ये कोल्डर है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल यानी हॉटर ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर कर देगा, और जो ही हीट इसके पास बढ़ेगा तो ये ज़्यादा तेजी से फिर वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है हीट, ठंडा करने से बढ़ता है और गर्म करने से बढ़ा देता है। ये बीमारी है। यहाँ पर ये बढ़ जाएगा तो ये भी टकराएगा, टकराएगा तो हीट बढ़ता जाएगा, एक इधर से इधर बढ़ता जाएगा, धीरे 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 हीट यहाँ तक भी आ जाए। आने का दिक्कत है, टकराते टकराते तो हम थोड़े कर रहे हैं। टकराएगा मॉलिक्यूल्स कब? जब हीट देंगे सॉलिड को, ये प्लास्टिक को नहीं, आयरन को, मेटल को, मोस्टली मेटल को और एलॉय को। These are good conductors of heat. Yes, in all houses. आप किचन रूम को देखिए, किचन रूम को खाना बनाने वाला ज़्यादातर उपकरण जो रोटी बनाने वाला हो, सब्जी बनाने वाला हो, प्रेशर कुकर हो, ये सभी उपकरण जो बनाए गए हैं आपके किचन में मेटल का बना हुआ। मेटल क्यों? Why not like made up of plastic or made up of wood? लकड़ी का क्यों नहीं बनाया गया अथवा प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाया गया? मेटल ही क्यों चाहिए वहाँ पर? वो तांबा का चाहिए, पीतल का चाहिए, ब्रास, ब्रॉन्ज। गरीब है तो आयरन का बना लेता है, क्या दिक्कत? अब मेटल का बना लिया तो कारण है कि यदि लकड़ी का बनाया और गर्म करेंगे तो जल जाएगा। दिक्कत है। मिट्टी का बर्तन एक जगह दूसरा जगह रखेंगे फूट जाएगा, लेकिन वो भी हीट का वेट कंडक्टर है। तो बर्तन इसलिए बनाया गया है कि वो हीट का गुड कंडक्टर है। किस माध्यम से? बाय कंडक्शन। थ्रू द मेटल्स heat is transferred from one part to another part by the process of conduction without transferring the molecules.
दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड दिस इज यूज्ड इन आवर किचन, इन योर किचन। सभी के किचन में वही है बात, मेटल वाली बात है, मेटल का बना हुआ है, इसलिए कि गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर इसलिए कंडक्शन करता है हीट का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को नहीं भेजता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। वो जहीं का तहीं वाइब्रेट करते रहता है। हीट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करता है, और कम हीट देंगे कम तेजी से ही वाइब्रेट करेगा, यही तो बात है। और जब वो वाइब्रेट करेगा तो टकराएगा ये, क्योंकि सब जगह तो मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, तो कोलिजन होगा एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के। किस केस में? जब मेटल का है अथवा एलॉय का है, स्पेशली का है। ये हीट के कंडक्शन की बात है। तो टकराएगा तो हीट का ट्रांसफर करेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी। इस तरह ट्रांसफर होते 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 ये ट्रांसफर होते रहता है, गर्म हो जाता है। इस पर आधारित ढेर सारे उदाहरण हैं, बुक में भी अवेलेबल हैं, लेकिन सर कंडक्शन के मेथड का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस पे आप प्रश्न बना करके रखना। यदि विद्यार्थियों के पास ये जा रहा है मेरा मैसेज, तो आप प्रश्न बना करके रखना। उम्मीद है कि ज़्यादातर आप खुद सॉल्व कर लोगे, और यदि नहीं सॉल्व हुआ तो आप सोचते रहो, फिर हम लोग मिलेंगे। लेकिन अभी कंडक्शन का यूज हमारे किचन रूम में है, क्योंकि हीट का कंडक्शन करता है। वो क्या करता है कि जहाँ हीट दिया गया वहाँ से उस हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है, लेकिन अपने मॉलिक्यूल्स को नहीं भेजता है। वो यहीं का तहीं वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे हो जाता है ये कंडक्शन। और जो कंडक्शन का काम करता है उसको कंडक्टर कहते हैं। सीधी तो बात है, कंडक्शन का जो काम करेगा उसको कंडक्टर कहेंगे, चालक। ये और कंडक्शन का यूज हमारे दैनिक जीवन में और जगहों पर है, बहुत सारे जगहों पर, सिर्फ किचन में ही नहीं है। और वाइट कंडक्टर्स का भी यूज है अपने अपनी जगह पर, ढेर सारा जीवन में ढेर सारा इस तरह का यूज है, मौजूद है, अवेलेबल है। आप दुनिया तो देखो पहले, एक मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का छिट्टा भर उदाहरण है। इतना सारा उदाहरण आपके चारों ओर आप ताक झाँक करते हो। हम लोग मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पर ये कंडक्शन की विधि चल रही है, और मैं अपने स्तर से जहाँ तक मैं जो जान रहा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिपीट करना बेहतर नहीं है, कंडक्शन को आप समझ गए होंगे। इसके यूज पर ध्यान दीजिएगा। जो बैड कंडक्टर है उसका उदाहरण है यही कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट का ट्रांसफर नहीं करता है। और ऐसे पदार्थ सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी है, गैस भी है, लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब सॉलिड होते हुए भी हीट का बैड कंडक्टर है। ये कंडक्टर की बात है। आगे आपको ये कंडक्शन पर
विचार कीजिएगा 1 मेथड पर। इसका उदाहरण खोज खाल कर रखिएगा। आगे मैं चलता हूँ कन्वेक्शन भी है ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस। फिर से समझ लीजिए कंडक्शन को फिर से। कंडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट to another object, from hotter object to colder object, but molecules are not transferred. This is conduction. ये conduction। लेकिन अब है convection। तो convection कंडक्शन के केस में कन्फर्म हो जाइए, एक बार हीट का ट्रांसफर होगा लेकिन मोलिकुल अंदर नहीं जाएंगे। कंडक्शन का शर्त है, कंडीशन। बात को याद रखिए। आगे है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन is that process of transfer of heat in which heat is transferred from one place to other place by the transfer of molecules। यहाँ पर ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल्स भी। फिर से कंडक्ट इन द केस ऑफ कंडक्शन molecules are not transferred from one place to another place, but in the case of convection heat is transferred from one place to another place by the transfer of molecules between those places। ये भी है हीट के ट्रांसफर का एक मेथड। कंडक्शन अलग है, आप कंडक्शन का यूज कर रहे हैं घर में, ये दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। दोनों के बीच का फर्क को समझिए। दोनों हीट के ट्रांसफर का प्रोसेस है, दोनों। एक में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होता है, दूसरे में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन, और जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होता है उसको कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में एक प्लेस पर मतलब वन मैटर, दिस इज ए मैटर, एक इंड पर हीट देंगे तो दूसरे इंड तक हीट जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ का मॉलिक्यूल ही यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ हीट देंगे तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो रैंडम मोशन में चलेगा, सभी में नहीं, सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, मेटल में अथवा एलॉय में ये घटना नहीं घटेगी, क्योंकि
कन्वेक्शन का कंडीशन है मॉलिक्यूल से ही जाएगा, ये कंडीशन है। यहां से हीट ले लेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा, मिलते जुलते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। सभी जितना भी गर्म होगा सभी पहुंच जाएगा, तब कंडक्शन कहलाएगा। कन्वेक्शन, यस कन्वेक्शन। ये सॉलिड में नहीं होगा ऐसा, ये लिक्विड में हो सकता है अथवा गैस में हो सकता है। घटना, पानी गर्म होता है, पानी कोल्ड वाटर, एक हीट इज गिवन, थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको, कोल्ड वाटर को, तब नीचे का molecules those molecules which are in the contact of the bottom get heated, गर्म हो जाता है, then their molecular kinetic energy gets increased, वो बढ़ जाता है molecular kinetic energy, and the molecules of water, the molecules of a liquid or the molecules of a gas has random motion. Random motion means random motion. This direction, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से जिधर मन हुआ उधर, विदाउट ओबेइंग एनी रूल। मोशन में रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। हम लोग उदाहरण निकल लेते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन में फर्क। कंडक्शन में पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन हीट का ट्रांसफर होता है। और कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब पार्टिकल का ट्रांसफर होगा। सीधी बात है, दिमाग लगाने का जरूरत है। हमको भी किताब में जो कहता है वो हम समझ गए, खत्म बात है। विज्ञान है, साइंस, ये साइंस। कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन, these two are the processes of transferring the heat from one end to another end of the object, or from one hotter object to another hotter colder object, or from one matter to another matter. Conduction and convection. Only one property, that heat is transferred but molecules are not transferred. This is conduction. This process takes place in metals or alloy, in solids. But this process is not applied for liquid and गैस। कंडक्शन की विधि लिक्विड और गैस में होता नहीं है, ऐसे समझिए। इसमें कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन बता दिया। कन्वेक्शन ये होता है लिक्विड में, लिक्विड एंड गैस, because they both have random motion
इन द पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स में अथवा गैस के पार्टिकल में रैंडम मोशन होता है। हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन CON एक बीकर, जिसे hot and वाटर, यहाँ एक this is a pot, convection. This is my topic. Convection is that process in which heat is transferred from one part of a matter to another part by transferring the molecules or by transferring the particles. यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर एक टिकिया रंग का सॉलिड इंडिगो पार्टिकल is placed at the bottom, indigo particle solid is placed at the bottom and heat is given to this. गरम करेंगे इस कन्वेक्शन कंडीशन है कि heat is transferred from one part of the matter to another part by transferring the molecules. molecule जाएगा तो इस पीस के कांटेक्ट में ये पीस जब यहां से गर्म करेंगे तो ये पीस भी गर्म होगा, नजदीक का बॉटम के कांटेक्ट में जो पार्टिकल होंगे वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा और उसका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। आंधी तूफान नहीं देखे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे गर्म करेंगे किसी को भी, पानी को देखिए खोलने लगता है, चलने लगता है डेक्ची में, जहाँ गर्म कीजिए वो चलने लगे, क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और वाटर के पास है मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन, जिधर मन उधर
और गर्म कहीं कर दिए, ए भैया आंधी तूफान आ जाता है हवा में। देखिए कन्वेक्शन की देन है, कन्वेक्शन, आंधी तूफान, समुद्री हवा तो वो हवा तो वो हवा, ढेर सारा कन्वेक्शन। आंधी तूफान टोर्नाडो, ये तो रोज हम लोग सहते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, करते रहते हैं। ये कन्वेक्शन है, दिस इज कन्वेक्शन। हीट जब होगा कोई मैटर तो उसका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, चाहे कोई भी पदार्थ, उसका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, हर हाल में बढ़ेगा। नेचर है हीट का, वो बढ़ा जाएगा। नहीं बड़े बैठे बड़े हीट को क्या मतलब है, वो गर्म होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ना धर्म है, लेकिन कैसे बढ़ेगा, हीट का नेचर है ये। और रैंडम मोशन है तो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, जिसको जो मोशन है वही बढ़ेगा। वाइब्रेटिंग मोशन है, वाइब्रेटिंग मोशन बढ़ जाएगा, जिसको जो मोशन बढ़ जाएगा। तो दिक्कत क्या है, लिक्विड का पार्टिकल में वाइब्रेटिंग मोशन, एयर के पार्टिकल में या गैस के पार्टिकल में वाइब्रेटिंग मोशन। हीट देंगे वाइब्रेटिंग मोशन बढ़ जाएगा, तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक चला जाएगा। आंधी तूफान में तो यही होता है, होता क्या outer air flows from one part to another colder part। गर्म हवा जो एक स्थान से उठती है वो दूसरे स्थान तक हीट के कारण, कन्वेक्शन के कारण। पानी जो गर्म हो रहा है आपका कन्वेक्शन के कारण। यहाँ देखिए उदाहरण कि हीट हम देंगे तो ये ऐसे ऐसे नीला होता जाएगा, पहले ऊपर जाए ऐसे नीला। ये नीला धागा क्यों जा रहा है, व्हाई दिस ब्लू लाइन्स आर मेड, क्यों बना ये लाइन, आपको पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट में दिखाई देगा। आप करके देखिए घर में, नहीं समझते हैं घर में कर देखेंगे। ये कांच का बर्तन होना चाहिए, कांच का गिलास का, हाँ बाहर दिखाई दे, बाहर गिलास नहीं, जो पानी पीते हैं गिलास को गर्म कर दीजिए, नीचे में वो रंग का दाना रख दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखिए उसमें ये जो कलर का गया है वो ऐसा, एक तो ऊपर बनेगा ऐसा बन जाएगा, हाँ फिर ऐसा भी बन सकता, लौटेगा जरूर। क्या लौटेगा, इसलिए कि हॉट से कोल्ड की ओर जा रहा है, हीट अपने साथ लेते हुए जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, ये इंडिगो पार्टिकल जा रहा है ऊपर। जब हम गर्म किए हैं ऑब्जेक्ट को, इंडिगो पार्टिकल को, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। बढ़ने के कारण पानी के साथ घुल मिलकर अब ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कौन, इंडिगो पार्टिकल। क्यों कि हमने उसको गर्म कर दिया। तो हुआ क्या, गर्म कर दिया तो कौन तकलीफ हो गई आपको बताइए, कर दिए तो अपना गुण दिखलाएगा ना, ऐसे होगा। गर्म किए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उसका, रैंडम काइनेटिक एनर्जी। रैंडम का मतलब जन्म मंत्र नहीं होगा, जाएगा नहीं जाएगा, जब ठंडा होगा तो नहीं जाएगा, उसका रूट है वो जिधर जिधर चारों तरफ ठंडा, जिधर उधर जाएगा।
लौट जाएगा, फिर यहाँ से गर्म होकर के फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये दिखाई देगा आपको एक्सपेरिमेंट में, कब जब आप अपना गरबा में कीजिएगा तब। कन्वेक्शन है, टोर्नाडो, मुझे टोर्नाडो कन्वेक्शन है। बंद करते हैं। ये दो चीज में हम कन्वेक्शन, आपको चाय बनता है कन्वेक्शन से, पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से, दूध गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से, सब समझिए गर्म हो रहा है। इससे आंधी तूफान आता है, वो भी जानिए, छोटी छोटी बात है। इसी से आता है कन्वेक्शन से, कंडक्शन से नहीं आता, कन्वेक्शन से आंधी तूफान। इसको समझिए, फ्रॉम आउटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, ये कन्वेक्शन का कारण है। टोर्नाडो में तो और कारण है दूसरा भी, लेकिन मेन हीट होता है। हीट बहुत खतरनाक चीज है सब। हवा का रूप, चारों तरफ हवा है, पृथ्वी के चारों तरफ, हीट के कारण कहाँ की हवा का रुख किधर हो जाएगा, हीट के कारण। जहाँ हीट रहेगा वहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, स्थान खाली हो जाए, उसको भरने के लिए फिर ठंडी हवा है, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। हल्की होने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर ऊपर बढ़ जाएगा। ये पार्टिकल बढ़ता जाएगा, हीट के साथ बढ़ेगा और ठंडे प्रदेशों की ओर जाएगा। तो जितना तेजी से हीट रहेगा उतना तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतना तेजी से तूफान उठेगा। ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होने के कारण होता है, और ये घटना घटती है लिक्विड में और गैस में। ये दो विधि अभी मैं बताती हूँ, दोनों विधि के अंतर को देख लीजिए, क्योंकि तीसरा रेडिएशन अलग है, वो अलग विधि है, उसकी चिंता मत कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं, करने का पार्टिकल करने दिया, ये बात को ध्यान दीजिएगा। यस, बढ़िया से समझ रहे हैं। और रेडिएशन में पर मैं कल चर्चा आपसे करूँगा, पहले दो को याद रखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा, कन्फर्म होकर ये मत सोचिएगा हम सपना क्लास में है। फॉरगेट दैट, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो, मैं भी पढ़ता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। शर्त है दोनों का, बस उतना को हम दिमाग से नहीं निकालेंगे। कन्वेक्शन का अलग शर्त है, कन्वेक्शन का अलग शर्त है। सिंपल सी तो बात है, दो लाइन है, दोनों को समझने के लिए रटने की क्या जरूरत है, ऐसी क्लियर बातें नहीं समझ रहे हैं। दोनों पहले बढ़िया समझिए कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी नहीं हुआ हो, हीट ट्रांसफर भी हो गया, ये कंडक्शन हो गया। इसका यूज है किचन में सब जगह ढेर सारा, एक दो कंडक्टर कहलाता है जो कंडक्शन करता है, मेटल है, लोहा है, ये सब उदाहरण। और कन्वेक्शन हुआ, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय
ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल से जाएगा, अपना एनर्जी बढ़ जाएगा, वो अपने जाए अपने पहुंचेगा, हीट लेकर पहुंचेगा, गर्म होकर पहुंचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान से। कहाँ तक जाएगा? आउटर पार्ट से फर्दर पार्ट की ओर जाएगा। ये कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन में पानी गिर गया, तो आप घर में गिलास में कीजिएगा, गिलास में हाथ नहीं जलना चाहिए, सावधानी। एक्सपेरिमेंट का पहला सिद्धांत ये कॉशन, सावधानी। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। कॉशन इज मस्ट फॉर द बेटर लाइफ, ओनली वन प्रिंसिपल। आप गलत हो जाते, तो ये आपको दो चीज, कन्वेक्शन और कंडक्शन, दोनों के डिफरेंस को बढ़िया से समझिए और बढ़िया से अपने चारों तरफ वातावरण को देखिए कि ये घटनाएं घट रही है या नहीं। सिंपल सी समझना है, किताब रटते रटते तो रट लिए, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, नो अदर स्टडी इज बेटर देन दैट। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। और एक किताब में पढ़ने जरूर NCERT, उसको आप बढ़िया से पढ़ें, दिक्कत होती है। ओके, थैंक्स। और फिर अभी और मिलेंगे, फिर कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। अगला रेडिएशन, फिर तीनों को रिपीट करते हैं। ट्रांसफर हीट ऑफ हीट को बढ़िया से पढ़िए, कठिन नहीं है, सोच कर देखिएगा, कठिन है। दिमाग में गुस्सा भरा रहता है, कठिन है, खाएगा नहीं, कठिन नहीं होता है। कठिनाई जहाँ होनी चाहिए छिपाना पड़ता है, ये भगवान सबसे कठिन काम है खाना। ऐसे समझिएगा, साइंस है, बहुत आसान है। आप तो दिमाग को तो खोलिए, सिर्फ वेरी वेरी इजी। अब दिमागों में तो लगे, अब दिमाग लगाना छोड़ दो, तो अपने समझ में आ जाएगा अपने आप पढ़ कर देखिए किताब को। और दिक्कत हो फिर हमें ना, हीट का ट्रांसफर, हीट रिजेक्ट और एनर्जी खत्म हो गया है। बात बंद करता हूँ, नेक्स्ट डे बात होगी। धन्यवाद।